topic. What is the meaning of the topic? हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए? हाँ, बेसिकली हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए? बिफोर इंडिपेंडेंस वेयर दिस ब्रिटिश रूल, उनके अपने सिस्टम था, सब कुछ उनका अपना था। कुछ चीजें हमको उनकी नहीं अच्छी लगती थी। That the people started thinking that we should have our own parliament. So this is the main chapter. We will divide this chapter into two parts. One part we will complete today and other parts next day and tomorrow. Okay. Turn the page 30. This is the gist. Page number, which page number? 30, page number 30. And then I will tell you the summary of this lesson. Half of the lesson we will complete today. Okay. Why do we need a parliament? We in India pride ourselves on being a democracy. Here we will try and understand the relation between the ideas of parliament in decision making and the need for the democratic governments to have the consent of their citizens. It is these elements that together make us a democracy, and this is the best expressed in the institution of the parliament. In this chapter, we will try to set how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution. Let me tell you, when we are selecting a monitor, how we are selecting a monitor in a class? Those who good in studies are well in discipline, और उसमें किसकी कंसेंट होती है? क्लास टीचर की मेनली कंसेंट होती है और बच्चों की। वी वोट, सिंपली वोट करते हैं हम लोग, तो जिसका हम 2-3 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, 2-3 या मोर देन दैट, देन वी स्टार्ट वोटिंग, और जिसको जब से ज्यादा वोट आता है दैट बिकम्स मॉनिटर ऑफ द क्लास. एंड हाउ वी सिलेक्ट दिस हेड बॉय और हेड गर्ल? How we select the head boy and head girl of the school? The same way. We nominate 2-3 students or 4 students, 2 girls or 2 boys, or 3 girls or 3 boys. Then they start campaigning. छोटे छोटे क्लासरूम में जाकर वो बोलते हैं कि मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मैं इतना अच्छा काम करूंगा. Then you vote them. All the students in their own classrooms, they vote. Teachers also vote. जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, he selected as a head boy of the school. मेरे सामने एक हेड बॉय और हेड गर्ल का हुआ था इलेक्शन, तो एक क्लास ने बोला, 6 क्लास के एक स्टूडेंट ने पूछा कि भैया आप क्या करोगे हमारे लिए? द बॉय सेड आई विल डू योर होमवर्क. जो लड़का उसमें था, उसने बोला मैं आपका होमवर्क करूंगा. इज दिस पॉसिबल? ऐसे ही मिनिस्टर जब इलेक्शन करते हैं तो वो हमको ऐसे ही ख्वाब दिखाते हैं ना, मैं आपके लिए रोड्स बनाऊंगा, सड़कें बनाऊंगा, वो बनाऊंगा. एवरीथिंग they can't do everything, each and everything. Let us start the lesson. Parliament, if you want to note down the some points, you can. And जहां पर आपको नहीं समझ आया है, you can stop me there and I will repeat that lines again. Okay? Yes, ma'am. Parliament enables citizens of India to participate in the decision making and control the government, thus making it is the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution. क्या है कि अगर हम अपनी गवर्नमेंट बनेंगे, we can make our own decisions. क्या है इससे, क्या है अगर हम एक गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, हमारा क्या रोल रहेगा? कॉमन पीपल का क्या रोल रहेगा उसमें? अगर हम किसी को वोट देंगे, वो मिनिस्टर बन जाता, हम कॉमन पीपल का रोल उसमें क्या है? कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होगी, वी कैन गो टू दैट पर्सन, कि जिसको हमने वोट दिया. हम अक्सर कहते हैं कि हमने आपको वोट दिया था, आपने हमारे लिए क्या काम किया. दैट्स वाई कि हम पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचते सकते हैं, हम किसी डिसीजन मेकर के पास नहीं पहुंच सकते, कॉमन लोग नहीं पहुंच सकते.
दैट्स वाई वी हम किसी एक आदमी को सिलेक्ट करते हैं तो वो आगे हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाते। इस मेन यही है कि हमको गवर्नमेंट, हमको एक उम्र के बाद वी कैन कास्ट आवर वोट, जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वी कैन पुट आवर प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फर्दर जो करना हो वो करें। हम कॉमन लोग किसी के पास नहीं जा सकते हैं, दैट इज द मेन थिंग। why should people decide? Number one, independence was long and difficult struggle. They got inspired by the ideas of freedom, equality, and participation in decision making. What do you understand by these lines? Again, I will repeat. Independence was long and difficult struggle. ये तो समझ आ गया। 350 ईयर किसी ने हमारे ऊपर इतने Yes, ma'am. सालों तक रूल किया, हमारा माइंडसेट वैसे हो गया, हम एक स्लेव की लाइफ स्पेंड कर रहे थे। क्यों हमें लगा कि हमको इसमें से निकलना चाहिए? Was a long and difficult struggle. They got inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making. क्योंकि ब्रिटिशर्स के सामने कुछ नहीं चलती थी। Then people start thinking कि अगर हमने फ्रीडम I ले want to लिया stay back. उनसे, फ्रीडम उनसे ले लिया, तो वी कैन डू मोर देन दैट। हम अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, हम अपने कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जहां पर हम भी बोल जाएं, वी कैन से एनीथिंग। Number two, under the colonial rule, the people did not criticize British government, but the freedom movement changed this situation. The nationalists began to oppose the British government and make demands. What's the meaning of these lines? Firstly, हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया था, हम कुछ उसके सिवाय कुछ सोच ही नहीं सकते थे। We thought in the one line कि बस यही है, हमको इनके अंडर ही मैम वो काम करना ब्रिटिश है। गवर्नमेंट के लिए हाँ, once the freedom was there, फिर हमने क्या किया, हमने ब्रॉडर वे में सोचना शुरू कर दिया। What we thought, हमने क्या सोचा क्या होना चाहिए हमको। The people of India started opposing the British government, और इंडियन गवर्नमेंट के सामने उन्होंने अपने कुछ डिमांड्स रखनी शुरू कर दिए। दे स्टार्ट के ऐसे नहीं चलेगा ना, डिमांड्स में डिमांड्स अभी आएगा ना, डिमांड्स की कैसे होना चाहिए, क्या होना, आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे। they make some demands in front of our own government. They start opposing the British rule. British rule अगर पूरा हम उस चैप्टर में जाएंगे, वो बहुत ही थोड़े से क्रूअल टाइप के लोग थे, बहुत परेशान करते थे इंडियंस को, इसलिए तो यहाँ पर अपना ट्रेड जमा सके वो। दे स्टार्ट थिंकिंग इन दोस टर्म्स। हमने एक लेसन पढ़ा था ना पीछे हिस्ट्री में कि कैसे वो टेक्सटाइल के लिए, तब उन्होंने सोचा कि भाई वो कोर्ट के पास गए कि उनकी मोनोपोली है हमारे वो, और वो हमको डोमिनेट Yes, कर रहे ma'am. हैं, कुछ हमें भी दो। यहाँ पर भी सेम ऐसे होगा कि वो हमें तो डोमिनेट कर रहे हैं हर एक चीज में। दे पुट सम डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट वर दो डिमांड्स, अभी धीरे धीरे हम आगे वी विल रीड आउट दिस। The Constitution in Independence India laid down the principles of universal adult from, for example, all adult citizens of the country have to write the vote. सबसे पहले क्या हुआ, those who attained the age of 18, सबसे पहले ये हुआ 18 एज 18 एज जब हो जाएगी किसी की, is unable to cast the vote, he is able to select his own representative. उसमें इनकी थिंकिंग है इतनी, उसमें इतनी एनेबिलिटी है, उसमें इतना आ गया है उसके अंदर कि वो एक आदमी को सिलेक्ट कर सकता है या उसको वोट देकर इलेक्ट कर सकता है। लोगों ने दे स्टार्ट थिंकिंग, दे डिमांड्स कि 18 इयर्स की एज में एक औरत हो या आदमी हो हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन कास्ट ए वोट एंड इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, जो बाद में उनके बात को आगे रख सकता है, फॉर्म कर सकता है। गवर्नमेंट हमको कोई प्रॉब्लम होगी तो वी कैन गो टू दैट पर्सन, वी कैन टेल देम। तो देयर आर टू पार्ट्स इन पार्लियामेंट, मेन इज द पार्लियामेंट, देयर आर टू पार्ट्स, लोकसभा एंड राज्यसभा। जो हम मेंबर्स इलेक्ट करके भेजते हैं, हम कहाँ भेजते हैं उनको, लोकसभा में।
हम जो इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को वो जाते हैं डायरेक्टली लोकसभा। लोकसभा में। और राज्यसभा के हैं इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम दीज एमएलएज और ये इनसे होते हैं वो उनके। हम राज्यसभा में कॉमन पीपल का कोई हाथ नहीं है, हम लोकसभा तक ही कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लोकसभा तक भेज सकते हैं। राज्यसभा हम कल आगे पढ़ेंगे ना। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं जिनको हम वोट देते हैं, व्हाट इज देयर वर्क, वो क्या करेंगे अब आगे जाकर, तो कैसे वो सिलेक्ट होंगे। A democracy is the idea of consent, the desire, approval and participation of people. What do you understand? Can I read it out second time? दोबारा से पढ़ूं इसको। A democracy is the idea of consent, the desire, approval and participation of people. What do you mean by this? Mostly is the participation of the people. सारे लोग इसमें, those who have attained the age of 18 can participate in this, they can cast their vote. यहाँ तक तो यही है। अब यहाँ पर बीच में I will ask you, what are the main parties of इंडियन डेमोक्रेसी में कितनी मेन पार्टीज हम कहेंगे, जो हमारे मुंह पर चढ़ी हुई पार्टीज के नाम, मेन पार्टी जो इंडिया में है। हाँ हाँ, पार्टी ऑफ इंडिया फर्स्ट है भारतीय बीजेपी, कांग्रेस मेन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी मेन जो है। फिर इसकी सब पार्टीज, अभी एक पार्टी जो है बहुत प्रोमिनेंट हो गई है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ये बहुत पिछले कुछ सालों में ये बहुत ही प्रोमिनेंट हो गई है पार्टी, बहुत इसने अचीवमेंट की है। विद इन द 7-8 ईयर्स में भी काफी अचीवमेंट हो गई है। मेन पार्टी 5-6 है, फिर उनकी सब पार्टी ने टोटल पार्टीज है 543, और जो सब पार्टी छोटे छोटे स्टेट्स में 2-2, 4-4 पार्टी जो करके हैं वो भी है 543। मेन पार्टीज 543 और जो सब पार्टीज होती है ना स्टेट्स के अंदर अंदर जो छोटी छोटी पार्टीज होती है, दैट इज आल्सो 543। It is the decision of the people that creates a democratic government and decides about its functions. What is the role of people here? वही करते हैं डिसाइड कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलेगी और कैसे उसमें जो काम होगा वो कैसे होगा। The group of people selects that thing. The basic idea in democracy is that the individual or the citizen is the most person and the more principal. The government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. जो सिलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, दोनों को आपस में ऐसे तालमेल बैठना चाहिए that they will trust the people and the people will trust that person. दोनों आपस में ऐसे होना चाहिए कि हम जिसको सिलेक्ट करें हमें उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए that he will work for us and that person equally should have that trust कि वो हमारे कॉमन लोग पर ट्रस्ट करे कि that are trustworthy, ये हमारे विश्वास के लायक है, दोनों पार्टीज विश्वास के लायक है। then we can say them anything कि change this or change that, do this thing for us, do that thing for us। कभी कभार हमको गुस्सा भी आता है, you have heard this कि वोट लेने तो आ जाते हैं, काम कुछ करते नहीं हो। दिस इज कॉमन थिंग है ना। हम बोलते हैं जब भी वोट मांगने के लिए हमारे घरों में लोग आते हैं, हम उनसे यही पूछते हैं कि आपकी व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट यू विल डू फॉर अस, क्या काम आप कर सकते हो, कैसे आप कर सकते हैं। आई वांट टू सी द पर्सन जिसको मैं वोट दे रही हूँ उसकी क्वालिफिकेशन। नो, जो यूथ हमारा है दैट्स मच एजुकेटेड, दे आस्क दिस थिंग्स। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके घर आ जाए तो आप उसको वोट दोगे। यू आस्क सो मेनी थिंग्स एंड यू शुड, आपको पूछना भी चाहिए कि what you will do for us if we are going to select you for 5 years, what is your role, क्या कर सकते हैं आप हमारे लिए। number 3 point is, number 4 is the parliament which is made up of all representatives together controls and guides the government। ये जो जिनको हम select करके भेजते हैं representatives के, that controls the
एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये काम ऐसे होना चाहिए। आपको देखते हो कभी जब काम नहीं होता है तो पार्लियामेंट में हंगामा होता है, दे मेक सो मच ऑफ नॉइज, दे मेक श्योर कि ये काम होना ही चाहिए। अपोजिशन पार्टी खड़ी हो जाएगी, नहीं यू हैव टू डू दिस वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। यहाँ तक हो गया? बुक से थोड़ा सा देख लेंगे आप। द रोल ऑफ पार्लियामेंट पे थे यहाँ, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। दिस इज द समरी ऑफ द लेसन। तो बाकी जो है लेसन है, यू कैन रीड इट ट्वाइस थ्राइस। पहले भी पढ़ा होगा आपने जब मैंने कल नोट डाला था। से यस और नो कुछ तो बोलिए। हाँ, बीच बीच में यस नो करते जाइए so that एक बार मुझे which one? हाँ, the role of the parliament. अभी हम उस पर आए नहीं, अब आएंगे। Now I will start that part. The role of parliament. Now we will start from the role of parliament. The Indian parliament is our expansive of the faith that the people of India have in the principles of democracy. हमें इस पर बहुत ज्यादा विश्वास है अपने पार्लियामेंट में। हम यही सोचते हैं कि जो कुछ होगा, जो हमारे लोकसभा में होगा, राज्यसभा में होगा, that is for the benefit of the people. वो जो भी करेंगे वहां पर बैठकर डिसाइड, वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। नंबर 2 पॉइंट इसका, the parliament in our system has immense powers because it is the representative of the people. क्या हुआ कि उनके पास वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं। उनके पास इतने पावर्स हैं, इतने ज्यादा पावर्स है जो कि वो दे कैन चेंज एनीथिंग, दे कैन कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। दे वांट, दे कैन डू सो मेनी थिंग्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। लेकिन क्या है कि कुछ ज्यादा होता नहीं है। वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी स्मॉल थिंग फ्रॉम दीज रिप्रेजेंटेटिव्स। दैट इज द second side of this part, but we should have faith in them कि हमें हमेशा ये सोचना नहीं वो कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए। They will definitely do something for us. Number 3, the Lok Sabha is elected once every 5 years. The country is divided into a number of these constituencies. Elect one person to the parliament. कितने सालों के लिए जो हमारे होते हैं, जो राज्य लोकसभा में जाते हैं, फॉर 5 years वी सिलेक्ट ए पर्सन फॉर 5 years, 5 years. तो हमारे हर, जैसे ये हरियाणा स्टेट है, इसमें भी ब्लॉक्स है। मैं गुड़गांव में रहती है, कोई किसी दूसरी जगह पर रहते हैं, कोई जींद में रहता है, कोई वहां पर रहता है। वहां पर वो सारे अपने अपने, हमारे गुड़गांव में एक आदमी सिलेक्ट होगा, वहां दूसरा आदमी सिलेक्ट होगा, दे इलेक्ट देयर मेंबर्स। और जो जिसमें उनको ज्यादा वोट्स जिसको मिलेगी, ही इज इलेक्टेड, वही इलेक्ट हो जाता है जिसके पास ज्यादा वोट्स आ जाते हैं। जिसके पास कम वोट्स आते हैं वो हार जाता है। इट इज अप टू द पर्सन। वो पर्सन कैसा, वो आपको कितना इम्प्रेस कर सकता है, वो कितना हमारा काम कर सकता है, देन ओनली वी शुड सिलेक्ट ए पर्सन फॉर 5 years। कोई छोटे मोटे 1-2 साल के लिए नहीं सिलेक्ट करते हैं। वी सिलेक्ट दोज मेंबर्स फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। और उसके बाद दे हैव द फुल, उनके पास इतनी अथॉरिटी होती है, दे कैन डू एनीथिंग फॉर दैट स्टेट, जिस स्टेट से वो जाते हैं, फॉर दैट स्टेट, फॉर द पीपल ऑफ दैट स्टेट। दे कैन, क्योंकि वी हैव सिलेक्टेड देम। Once elected, the candidates became members of the parliament of MPs. They MPs together make up the parliament. Parliament performs the following functions. They performing following functions. We will read it tomorrow. अभी इसी को हम डिस्कस करेंगे। If you have any point, you can ask me. The role of parliament. हाँ, this part we will read tomorrow. यहाँ तक हम इसको थोड़ा सा करेंगे कि the candidates who conduct elections usually belong to the different political parties। कि अलग अलग हमारे पास कभी बीजेपी का कैंडिडेट आएगा, कभी कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा, कभी एनसीपी का कैंडिडेट आएगा। तो जो बेस्ट कैंडिडेट लगेगा, we will elect those members only।
जो बेस्ट हमको लगेगा, जो लगेगा कि हमारे लिए काम करेगा, वही लगेगा कि हमें इस चीज की नीड क्यों है कि क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं। वो अपनी गवर्नमेंट थी, उन्हें अपने उनके रूल्स रेगुलेशंस थे, जो उनका करता है वो उन दिनों डिक्टेटरशिप टाइप की थी। डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में काफी, डिक्टेटरशिप मीन्स कि वन मैन शो, कि मैं जो कहूंगा बस वही होना चाहिए। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में आपको सबकी सुननी है, क्यों, इंडिया इज बिग डेमोक्रेटिक स्टेट। तो वो उस परेशान हो गए थे ब्रिटिशर्स के उस बिहेवियर से। दे थॉट कि हमें अपनी एक गवर्नमेंट बनानी चाहिए, वेयर वी शुड फॉलो आवर ओन रूल्स, हमको हर टाइप की आज़ादी हो, हमको वोट कास्ट करने की आज़ादी है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू लिबर्टी, सब कुछ हमारे हक में हो। उन दिनों कुछ नहीं हुआ करता था, देयर इज डिक्टेटरशिप थी। एंड नाउ वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक स्टेट। हमारी डेमोक्रेसी इतनी फ्लेक्सिबल है कि लोग जो दूसरी कंट्रीज है पॉइंट्स यहाँ से लेते हैं, वो ये सोचते हैं कि इंडिया इज द बेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट, हमें इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। वी कैन लर्न, दे थॉट कि उनको बहुत चीजें सीखनी चाहिए। डिक्टेटरशिप में बस एक ने बोल दिया, बस आपने वही करना है। डेमोक्रेसी में देयर इज ऑलवेज फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन डू व्हाटएवर। आपको अभी आप चाहो तो पूजा कर सकते हो, अभी आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। अभी आप राइट ऑफ एजुकेशन आपको मिला हुआ है, 5th तक पढ़ाई, पढ़ाई इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, पढ़ना ही पढ़ना है। गवर्नमेंट इज गिविंग यू सो मेनी facilities, midday meals, free education in government schools up to 5th class. We have so many opportunities to grab these things. If you want to ask any question, first of all, Not properly. before today's work is draw the symbols of prominent parties. What do you mean by symbols of prominent What? parties? Draw the symbols of prominent parties. मान लीजिए बीजेपी का क्या सिंबल है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ बीजेपी? Lotus. लोटस। Lotus. कांग्रेस? कांग्रेस हम हाथ. मैम हाथ है। आम आदमी हाथ. पार्टी? मैम झाड़ू. झाड़ू. झाड़ू, झाड़ू टोपी। उसने स्वीप ही कर दिया, झाड़ू से उसने सब कुछ साफ ही कर दिया। जो भी मेन पार्टीज है, मेन प्रोमिनेंट पार्टीज, एटलीस्ट 6 तो बना ही दीजिए। मेन एनसीपी या मेन प्रोमिनेंट पार्टीज के सिंबल्स आप ड्रॉ करेंगे। एंड राइट डाउन द मेन प्रोमिनेंट पार्टीज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। उसकी जो सब पार्टीज है वो नहीं, मेन पार्टीज जिनका बोलबाला है इंडियन गवर्नमेंट में, जिनका काफी है कि प्रोमिनेंट पार्टी जो है, एक उनके नाम, ऊपर से उनका सिंबल और नीचे उनका नाम, सिंबल के साथ ही आप नाम नीचे लिखेंगे। इज दैट ओके? एंड मेक द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की एक बना दीजिए, ड्रॉ पार्लियामेंट। एंड कैन आई गो थ्रू विद दिस बुक? बुक में मेन कुछ आप पूछेंगे, दिस व्हाई शुड वी सिलेक्ट द पीपल और peoples and their representatives, यहाँ पर कुछ है, fill in the blanks. You see these fill in the blanks in page number 33. 1 2 3 4 4. Yes, ma'am. Can you read this? Can you read democratic governments? Can you read this? Democratic government in our times are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate but comma instead choose their dash through an election process. These election process, through an election process, these dash meet and make decision for the entire population. These days, a government can't call itself democratic unless it allows what is known as
dash. This means that all adult citizens in the country are allowed to vote. To vote. Can you do this only this one? You have to fill in the blanks. Words Yes, are ma'am. given. Words are given there. Sense निकाल के you have to do, and this is your homework. Rest, what you anything you want to ask? No, ma'am. We will read. Can you read how many parties are there? Can you read this? Aam Aadmi Party, All India, Anna Dravid. This is a long process. Basically हमको भी नहीं पता सब parties कितनी है इंडिया में, तो आए दिन ही दूसरी पार्टी स्टार्ट हो जाती है, isn't it? 10 दिनों के बाद एक के साथ पंगा पड़ा तो दूसरी पार्टी स्टार्ट हो जाएगी. There are so many sub parties in India. Tomorrow we will read this Lok Sabha and Rajya Sabha, and rest part of this to select the national government. So many things are going. आज तक अभी तक कितना है? Can you tell me the age of क्या एज होनी चाहिए? Those who voting 18. 18. Right to vote. Right to vote at the age of you are free to select your own representative. Those who will put your questions in parliament, those who can solve our problems. This is the main function, how we will select a person. And schools में अगर हम स्कूल से ही एग्जांपल लेंगे, कैसे एक मॉनिटर, सेम प्रोसेस है, कैसे एक मॉनिटर सिलेक्ट होता है, कैसे एक हेड बॉय हेड गर्ल सिलेक्ट होती है, उसी को अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ले लेंगे, देन दिस इज द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ दैट इलेक्शन. इलेक्शन इज इलेक्शन इन ए स्मॉल वे और इन ए लार्ज वे. लार्ज में सारी गवर्नमेंट मशीनरी उसमें इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर स्कूल के छोटे स्कूल की मिनिस्ट्री मशीनरी इन्वॉल्व होती है, वहां पर गवर्नमेंट मशीनरी इन्वॉल्व होती है, छुट्टी होती है, बड़े तामझाम होते हैं. न आने वाले कहाँ पर इलेक्शंस है? अभी हमारे बिहार में आने वाले इलेक्शंस है, बिहार में आने वाले हैं इलेक्शंस. Yes, ma'am. Bihar. हाँ, तो इफ यू वांट्स एनी क्वेश्चन इसमें अभी अगर आपको कुछ पूछना है तो कब हमारा ये हुआ था, फ्रीडम कब मिली थी हमको, इन विच ईयर? इंडिपेंडेंस 1947. 15 August 1947. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? मैम क्या? कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ, बुक जिसको हम कहते हैं लॉ बुक, जो लॉ बुक बन गई थी, कब बनी? 1995 में लागू हुआ था. हाँ, अगेन रिपीट अगेन. 1995 में लागू हुआ था और बना तो पहले था. 1950 1950 में कौन मेन पर्सन कौन था जिसके अंडर ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ बने थे? अम्बेडकर. हाँ, गुड. अम्बेडकर. हाँ, उसकी एक टीम, उनकी एक टीम बनी थी जिन्होंने काफी 2-3 सालों पर उसके काम किया था और फाइनल शेप बन गई थी 1950 में. हमारे यहाँ कौन सी प्रोमिनेंट पार्टी है इस टाइम हरियाणा में, और कौन सा रूल किस लीडर का रूल चल रहा है, किस पार्टी का बेसिकली रूल चल रहा है? बीजेपी पार्टी. What is the name of Chief Minister of BJP party? What's the name of Chief Minister of Haryana? He belongs to which party? Manohar Lal Khattar. Manohar. Okay. He belongs to which party? BJP. BJP. Good. BJP. These are the main little things you have to remember. फिर हम how many members are there in the Lok Sabha, how many members are there in the Rajya Sabha, इसका है ये जो है, बाकी इसको हम कल करेंगे. और anything you want to ask? No, ma'am. अच्छा, tell me how many
किसी ने हिस्ट्री का काम अभी तक किसने पूरा नहीं किया है? कैन यू टेल मी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी काम हूँ द नेम मेरे ऑफ पास द डाउट है स्टूडेंट? एक। हाँ बताइए। मैंने ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में दोनों ही काम भेजा था मैम। व्हाट इज योर नेम? अमन। अमन का तो नाम मैंने लिया। आई डोंट नो एक्चुअली आई एम नॉट मेंशनिंग ए और बी। आई एम जस्ट जो मेरे पास काम आता है मैं नाम लिखकर आगे लिख देती हूँ। अमन है मेरे पास नाम। आई डोंट नो फ्रॉम विच सेक्शन यू आर। आई नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली राइट डाउन सेक्शन। अमन इज देयर। हिस्ट्री काम कंप्लीट है। Aman, I will see. Aman, यस मैम। your history work is complete, not geography. I don't know from which I will section you are. Next time I will write down the section as well. I have ओके also, मैम। but only your, yes, your geography and history both complete है. Complete है आपका. एक यस ऊपर मैम। आया एक नीचे आया. ओके ओके. और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज सेंड योर वर्क. 6 minutes लेफ्ट. मैंने अभी काफी ट्रैवल आज किया हुआ है. मैं मॉर्निंग से ट्रैवल करे. मैंने 2.5 hours का ट्रैवल किया हुआ है. आई मस्ट टेक योर लीव टुडे. ओके बाय बाय. आई विल टेक रेस्ट फॉर सम टाइम. बाय बाय. मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून. हेलो अर्चना. हेलो Thank you, अर्चना. ma'am. हेलो अर्चना. Ma'am. हेलो. Yes, ma'am. Bye bye everyone. Bye, ma'am. Bye बाय मैम। bye bye Bye, ma'am. Bye, bye ma'am. bye bye Bye, ma'am. Bye, ma'am. bye bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. अब हम क्यों बैठे हैं? ऐसे ही कुछ हाँ। टाइम, अभी 4 मिनट लेफ्ट है, बस ऐसे बैठे हैं। बस शांति बनाए रहता हूँ। ऐसा लग रहा है रुद्र। कि मून पे है। हाँ रुद्र हाँ कल जैसे हाँ करेगा? जी। क्या? कल का करेगा? नहीं नहीं, अरे ये कंफ्यूज क्या बोल रहे तुम? कल जो तूने 1 बजे 2 बजे किया था तू करेगा? मैं करूंगा पर किसी को नहीं बुलाऊंगा। क्यों? ऐसे ही। तो अकेले बैठेगा? पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। फिर क्लास किया क्यों? हाँ क्लास क्यों किया ऐसे फिर? मेरे को खुद से पढ़ने का मन नहीं है। मैं बस थोड़ा सा जानने की, मैं पढ़ मतलब कि ये वाला पढ़ाई मैम जो सिखा रही है ऐसे। अच्छा। मेरे का मूवी देखने का मन नहीं कर रहा है। दोबारा देखूंगा कोई फिल्म मस्त।
जूम तो बाय। बनाऊंगा, जूम में जिसको भी आना होगा आ जाना। ये कौन है? अंकित हरी। अंकित क्या कर रहा है तू? अंकित, बोल अंकित बोल। क्या बोल रहा था मैं भूल गया। तू स्क्रीन इंस्टाग्राम शेयर चलाता क्यों कर रहा है? तू इंस्टाग्राम चलाता अंकित, बता। चल 2 मिनट लेफ्ट है। नमस्ते सबको, सब लोग कैसे हो? और मैम भी है, मैम जी नमस्ते। कितना सन्नाटा क्यों है? मून पे हूँ। क्योंकि तू बोल रहा है ना इसलिए। अमन, ओहो, मेरे को टीचर बना दिया। वैसे फ्री जूम होता है 40 मिनट का। मेरे को आ गया बनाना। मैं भी कर दूंगा क्लास स्टार्ट। और अंकित, तुम सब कैसे हो? वैसे कोई बैठा भी है या ऐसे ही फोन छोड़ के चले गए सब? अरे सब बैठे हैं, सब चुप है। कोई नहीं सुनता, सबका ऐसे करके बस चुपचाप शांति। अमंती, शिवा, रजीना, मुस्कान, अनुजा, अर्चना, मैं हो तो देवी। देविका आ गई अब। हेलो देविका, गुड मॉर्निंग। हम सब ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे हैं। कैसे हो? 1 मिनट से कम है, अभी बस खत्म होने वाला है। हल्ला बोल अमन। रुद्र रिकॉर्ड हो रहा है। निकलो यहाँ से। बाय बाय सबको, बाय। हाँ बाय।